गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले हफ्ते मैंने एक बच्चे की काउंसलिंग की है कैट 25 के लिए एंड आई फाउंड व्हेन आई वाज डूइंग हर काउंसलिंग, तो जो पुराने बच्चों का ऑलमोस्ट 1000 फास्ट अचीवर्स का जो यूज था, उसके बेसिस पे आई हैड गाइडेड हर कि हाउ द प्रेप फॉर हर कैट 25 शुड गो। 26 वालों के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट होगा बट आई विल बी शेयरिंग। तो आई थॉट कि वो कल भी वो बच्ची मुझे मिली तो आई आस्क्ड हर कि हैज इट हेल्प्ड यू, तो इट हेल्प्ड हर अ लॉट। पास्ट में भी जो ये डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, कई बच्चों ने मुझे 3 या 4 दिन के बाद भी रिपोर्ट किया था कि देयर accuracy in verbal increased by almost 50% by following some of the tips I'll be sharing right now. So let us start firstly with VARC, that how to target 99 percentile plus in this section for the cat, and the action plan from now onwards. So as advised, right now we are in July. More focus of this video is for the students who are giving CAT 25 or ZAT 25, ZAT 26 January. So I'll be focusing more on them, but 26 वालों के लिए भी relevant होगा. So July is gone. So we are now in August. So we have told our students कि अगस्त में verbal में presently 8 to 10 attempts ही करें, attempts with target of 100% accuracy. Now for this, what should be the approach? We are saying about SIMCATs. SIMCATs, whether they are take home or they are proctored, the student should attempt around 8 to 10 with 100% accuracy. अगर 8 भी ठीक हुए तो 24 marks आ जाएंगे verbal में. Or later on, from August to September, October, November, with confidence going up and concentration focus going up, by November you can target 12 to 14 questions. If you are not able to target 10 to 12 to 14 even in November end, when the CAT approaches, or Jan 26 for ZAT, still even if you attempt around 10, you get around 30 marks in VA, which will be approximately 96 percentile, 96 to 97 percentile with a high accuracy. So this is one path. Okay, 90, I'll say 96 to 97 percentile VARC में लेने के लिए approach. Now, what should be the approach in the section of VARC? Firstly, glance the full section. Glance the full section. It will take maximum 3 to 4 minutes. Maximum. You have gone through all the RCs. Now, if your odd sentence out, if this is your strong area, I'll say that first attempt this area, whichever is your strong area. If it is odd sentence out, go for this. Now in the odd sentence out also, if there are say 2 or 3 questions for this, and if it is your strong area, you will come to know which is the odd one, and you will get a surely 100% success rate, accuracy in this, and you will get 2 or 3 questions right in this. Even if you are not 100% sure in this, you are able to come to, out of the 4, the 2 which are 2 you are clear कि ये तो नहीं है, ये sentences बैठ रहे हैं, बाकी 2 में से डाउट हो तो you can keep it either towards the end of the section or with a जो आपको दोनों में से ज्यादा प्रोबेबल लगता है उसको टिक कर दो. अगर रॉन्ग भी हुआ, करेक्ट होने की 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस तरह से ऑड सेंटेंस आउट में, और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लेने वाला. अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो सबसे पहले इसके 2 क्वेश्चन करके 100% एक्यूरेसी से कर लो. अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूं इसको 2 आरसीज करने के बाद एंड में आप देख लो, और तुक्का भी मार सकते हो. 2 में तुक्का मारा तो आपका 50-50 चांस है, एक भी ठीक हो गया तो बोनस है, और ये टीटा है तो माइनस है नहीं. बट इसको शुरू में तभी करना है अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है. अगर ये स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है तो एंड में रखेंगे. 2 क्वेश्चन है, देखे 2 जो पता लग गए नहीं है
इसमें पक्का ही है कि ये ऑड नहीं है। एक है जो ऑड है बट उन दोनों में कंफ्यूजन है, जिसमें ज्यादा चांस लगता है उसको एक में लिख दो, वो नंबर 2। एक में अगर थर्ड लिखता है थर्ड लिखो, चलो आगे। 50% चांस है कोई एक आधा क्वेश्चन शायद ठीक हो जाए, इवन बाय इंटेलिजेंट गेसिंग। नाउ if odd sentence out is not a strong area, then you look at identify two RCs। टू आरसीज में भी अब कुछ स्ट्रेटजीज मैंने बच्चों को बताई हैं, जो पास में भी बताई थी। जब आप आरसी करने लगते हैं तो यूज योर दीज 3 फिंगर्स ऑन द स्क्रीन लाइक दिस फॉर रीडिंग। जब हम किसी चीज को पेन से पढ़ते हैं तो हम ऐसे चलते हैं, या पेंसिल से पढ़ते हैं तो ऐसे चलते हैं, सो दैट नेक्स्ट लाइन हमारा फोकस और एनर्जी उन लाइन के ऊपर फोकस करने में वेस्ट ना हो और दिमाग थके ना। तो यू शुड ऑन द स्क्रीन यूज योर दीज 3 फिंगर्स लाइक दिस एंड मूव। एक लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, पांचवी, you are continuing to read the passage using these fingers like this on the screen. It will save your stamina, it will save your focus, it will save your energy and will give you strength for more questions। फिर आपने आरसीज को पढ़ लिया ऐसे करके, उसमें हो सकता है तो P1, P2, P3, P4 चारों पैरास की जिस्ट बना लें। जिस्ट मीन्स जैसे मैंने एक आरसी पास में कोई पढ़ी थी कैट की, कि उसमें बात कर रहा था इनिशियल पैसेज में कि हाउ द यूरोपियन शिफ्टेड फ्रॉम यूरोप इन से 1920 समथिंग टू यूएसए। सो शिफ्टिंग फ्रॉम यूएस फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू यूएसए 1920s की बात कर रहा है। फिर उसने बोला कि यूएसए के सेंट्रल यूएसए में मोर कंसंट्रेशन इनकी हो गई यूरोपियंस की। तो एथनिक यूरोपियंस की कंसंट्रेशन इन द यूएस इन 40s टू 50s और 60s, 50s टू 60s इंक्रीज। तो आपने एक छोटा सा यहाँ ये लिख लिया। फिर उसने बोला कि आफ्टर द डेमोग्राफिक चेंजेस इन द यूएसए ऑलमोस्ट say 60% population over the years by 1980s became of people who had migrated to USA from America, from Europe and other countries। And then in the end conclusion है कि उनका वोटिंग राइट्स और उसके कारण काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन द सेंट्रल स्टेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो P1 में वो कंक्लूड कर रहा है कुछ ऑथर। तो आपने एक छोटी सी जिस्ट दिमाग में बनाते हैं बच्चे। अभी मैं कहूंगा अगर लिख सको तो थोड़ा थोड़ा रफ पेज पे लिख लो। उसके बाद आप आए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पढ़ा, सब बच्चे कहते हैं और मैंने खुद भी देखा है, दो ऑप्शन जो होती हैं बिल्कुल एब्सर्ड होती हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है पैसे, वो तो आपने आउट कर दी। अब जो दो में डाउट है आपका, ये या ये किसको करूं, तो उसके लिए बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, जो पुराना मेमोराइज हुआ होता है पैसेज को पढ़ने में, उसके बेसिस पे जाके उसको कर रहे हैं। उसकी बजाय आई विल रिकमेंड कि आपने जो देखा है, जो पता है कि ये क्वेश्चन इस एरिया का है, यहाँ पे है, पैसे 2 में है या पैसे 3 में बात हो रही है इस बारे में, इसके आइडिया आपको एक है, तो आप उस एरिया को जाके फिर से 4-5 लाइन द्वारा पढ़ें और फिर उसको करेक्ट टिक करें। वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट यू विल गेट 100% एक्यूरेसी। सो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट 2 आरसीज 10 क्वेश्चंस राइट। तो ये करते करते अप्रोक्सीमेटली आपको 15-15 मिनट दोनों आरसीज में लगेंगे, और फिर आपके पास जो 3-4 मिनट अगर कोई बैलेंस बचते हैं तो आप ये ऑड सेंटेंस आउट को कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज माय रिकमेंडेशन फॉर वर्बल एबिलिटी। नाउ हाउ टू इंप्रूव अदर देन दिस, व्हाट आर द अदर थिंग्स रिक्वायर्ड, जिनका मैंने देखा है कि डायरेक्ट 100% कोरिलेशन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्कोर को बढ़ाएगा। नंबर 1, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू 15 मिनट्स मेडिटेशन। कुछ वीडियोस रोहित सर को शेयर की गई, वो दिखा रहे हैं आपको क्लास में, और कुछ आई विल बी शेयरिंग मोर विद यू। तो 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन, नहीं कुछ भी करना, अपनी ब्रीदिंग को ही ऑब्जर्व कर लो, और उसके बाद यू गो फॉर फास्ट वॉक और रनिंग फॉर 30 मिनट्स। स्वेटिंग आ जाए इतनी करनी है, उसके बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन करो। एंड बिफोर sleeping you again do 15 minutes meditation, deep breathing,
and Bhastrika pranayam. It will give you very good deep sleep. 7 hours sleep will be giving you regeneration of approximately 10 hours worth regeneration. ये अगर कर लिया और ये सब करा तो आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल में 96 से 99 से कम आने का कोई चांस नहीं किसी के लिए भी, ठीक है। सो विद दिस आई कैन, और ये बहुत जरूरी है, जिन बच्चों ने ये सब कहने माने हैं, ऐसा किया है, दे हैव रिपोर्टेड टू मी इन द पास्ट के 6 दिन में 7 दिन में दे सॉ ऑलमोस्ट 50% इंप्रूवमेंट इन देयर एक्यूरेसी। एंड इफ 30 मार्क्स यहीं पे आने लग जाए, आगे आते हैं DILR पे। नाउ इन दिस सेक्शन अगेन द अप्रोच शुड बी glance ऑल द सेट्स। उसके बाद यह चूजन 2 to 3 sets based on your comfort oblique strong areas। अब आप जब इसको सेट्स को करने जा रहे हो, उसमें एक चीज का कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट भी ये करता है, हमारे जो सिम कैट्स बनाए जा रहे हैं उनमें भी ये किया जाता है कि अगर एक DILR के सेट में 5 क्वेश्चंस हैं तो जरूरी नहीं है सारे 5 करने। यू कैन डू 3 or 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज, और जो एक लगे कि टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रिकी है, छोड़ दो उसको। दैट इज ट्रैप क्वेश्चन, वो आपको फंसा देगा। तो ये कैच है कि हमने दिमाग में आता है, हमने ये डाटा देख लिया, हमें अप्रोच पता लगी, इस डाटा को कैसे करना है, 3 क्वेश्चन हमारे ठीक निकल गए, अगला चौथा देखने में लग रहा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है वो कोई चीज, जिसमें 6 फैक्टर लगने वाले हैं। पहले 3 में 2-2 3-3 फैक्टर थे, वो 3 हमने क्वेश्चन, कोई जो 5 में से कोई 3 क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई किए जिनमें फैक्टर्स कम है, इजीली फास्ट हो जाएंगे। इसमें भी ऑल 5 क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस, read them, then select questions from set that need to be done। कई बार ये एक पूरा टेबल दिया होगा डाटा का, पहला ही क्वेश्चन उसका इतना गंदा होगा आपको 3 मिनट खा जाएगा। कई बार ऐसा डाटा सेट होगा, पहला क्वेश्चन आसान सा होगा, दूसरा ऐसा होगा ट्रैप क्वेश्चन जिसको आपको नहीं करना। तो ग्लांस कर लिए सारे सेट्स, चूज कर लिए 2-3 सेट्स, उसके बाद वी हैव चूजन सम उस सेट में से जो हमने चूज किए हैं उनमें से 3 क्वेश्चन चूज करो पहले। 3-3 6 3 9, पहले 9 का अटेम्प्ट की टारगेट लेके चलते हैं। तो 3 अपने को दिख गए कि इस डाटा के लिए ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। ये 2 में यार बड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा है, ये जो 8 के 8 फैक्टर देखने पड़ेंगे, मंथ्स का भी बोल रहा है, फिर कार सेल्स का भी बोल रहा है, फिर डेमोग्राफी का भी बोल रहा है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, छोड़ दिया फिलहाल हमने उनको, शुरू में नहीं करेंगे। तो 3-3 क्वेश्चन पर सेट। अगर 4 लग रहे हैं आसान है, जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी और जो फैक्टर्स लगने वाले हैं कैलकुलेशंस में निकालने में वो ज्यादा नहीं है, तो हम 4 भी पकड़ लेंगे, नहीं तो 3-3 पकड़ो पहले। हर जो चूज किए हैं सेट 2 से 3, उनमें 3-3 क्वेश्चन करो और हाई एक्यूरेसी के साथ करो। 9 क्वेश्चन हो गए, 9 3 27। फर्स्ट पड़ाव ये है। अगर आपके जैसा पिछले कुछ सालों से DILR आ रहा है, अगर 9 क्वेश्चन ठीक हुए, आपके 95 to 96 परसेंटाइल आ जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचा तो आपको पता लग जाएगा टुवर्ड्स द एंड कि जो वो 6 क्वेश्चन, 3 सेट में से 2 क्वेश्चन पर सेट आप छोड़ के आए थे पहले, उनमें से कौन से ऐसे हैं रिलेटिवली बिटवीन द ऑल ऑफ देम जिनको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो फिर कर लो। ठीक है, DILR का दिस इज द स्ट्रेटेजी। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। एक जो बच्चे की मैंने अर्शप्रीत की भेजी हुई थी आपको वीडियो, सॉरी क्लिप, उसका स्क्रीनशॉट फ्रॉम हिज लिंक्डइन। ही सेड कि 300 सेट्स ऑफ DILR आपने कम से कम किए होने चाहिए, प्लस रिवाइज किए होने चाहिए। तो इसमें आपके पास सिमकैट्स प्लस टेक होम अराउंड 40 के करीब, प्लस प्रॉक्टर्ड अराउंड 18, मैं 20 पकड़ रहा हूँ फिलहाल, प्लस सेक्शनल टेस्ट को मिला के, सेक्शनल्स को मिला के 10 के करीब ये हो गए। तो कितने हो गए? 70 हो गए आपके पास। 70 इंटू 5 सेट हैं तो 350 सेट्स तो यही हो गए मोटा मोटी। क्लास वाले अलग हैं।
अब एक और इसमें कैच है, नंबर वन इज दिस, 300 प्लस सेट्स आपने सॉल्व किए होने चाहिए प्लस रिवाइज, दिस इज वेरी क्रिटिकल. नंबर टू, जो सेट्स दो सेट्स which you left uh, or you chose not to do, उनका भी एक्सप्लेनेशन देखते जाओ, एक्सप्लेनेशन रिव्यू. ये करेंगे तो अपने पास पक्का DILR का स्ट्रेंथन हो जाएगा काम. 300 प्लस सेट क्लासेस हो रही हैं, वर्कशॉप लग रही हैं, आगे इंटेंसिव वर्कशॉप लगे हैं, कुछ ये हमारे पास पुराने सेट्स हैं कैट के, और प्लस हमारे पास की कैट 500 के कुछ सेट्स हैं, वो हम कराएंगे. तो विद दीज होपफुली थिंग्स विल बी बेटर इन DILR. नाउ वी कम टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज क्वांट. बहुत सारे बच्चों का यही कहानी, नीचे मैं पूछता हूँ तो क्वांट में सर 2 3 आ रहे हैं नंबर. ठीक, चलो. Now in quant, I am going to list down now some of the areas which I have seen in the last many cats, जिसमें से questions काफी आते हैं, and how many questions are likely to be there from them and how much we should be attempting. सबसे पहले numbers, approximately 3 questions तो minimum मान के चलो कि आएंगे, हम इसमें से एक मान के चलते हैं कर लेंगे. Then algebra, approximately 3 questions आएंगे. मैं easy वाले जो डुएबल वाले हैं उनकी लिख रहा हूं कहानी अभी. नंबर 3, ज्योमेट्री अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन आएंगे. मैं फिर कह रहा हूं हम एक उनमें से कोई करेंगे चूज करके. नंबर 4, अर्थमेटिक. अब अर्थमेटिक्स में क्वेश्चंस तो 4 से 5 आ जाते हैं, बट जो संजय सर पुराने टीचर्स की भी जब फीडबैक आ रही है, जब वो पेपर दे के आते हैं, तो द फीडबैक इज अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखने में आसान सा लगता है बट बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो टीचर्स के लिए दैट इज ओके, बट यू गाइस शुड अटेम्प्ट मे बी 2 ऑफ अर्थमेटिक. जो बाकी 2 से 3 है जो कि लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, 1.5-2 मिनट हो गया अभी तक हाथ आंसर के पास तक नहीं पहुंच रहा, छोड़ दो. दैट इज ए ट्रैप क्वेश्चन. नाउ अर्थमेटिक के बाद लॉग्स, अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 क्वेश्चंस आर नॉर्मली देयर. अपने को 2 क्वेश्चन मान के चलो आते हैं लॉग्स के, एक पकड़ते हैं. ट्रिग्नो, 2 क्वेश्चंस आर लाइकली, 1 करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चन मैंने सिमकैट में देखे थे, उनमें देखने में क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लगता है, इधर कुछ लिखा है, इधर कुछ लिखा है, फिर इक्वल टू कोई वैल्यू दी हुई है, फिर इधर कुछ लिखा है 10 डिग्रीज एटसेट्रा, इधर कुछ वैल्यू दी हुई है. बट उसको 10 को कॉट में कन्वर्ट करके जब उसकी वैल्यू डाल के हमने इक्वेशन बनाई, इट टुक मी जस्ट 30 सेकेंड्स टू ब्रिंग इट डाउन टू ए वेरी सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन, और उसको फट से सॉल्व कर लिया मैंने. सो सम क्वेश्चंस ऑफ दीज टॉपिक्स, logs, trigonometry, indices etc, they look very difficult on the first sight, but जो सर ने ट्रिक्स वगैरह आपको क्लास में कराई हुई हैं और जो आपने सिमकैट्स में भी देखी हैं एक्सप्लेनेशंस में, उनको यूज किया तो वो फट से आपका एक क्वेश्चन आपको लो हैंगिंग ही बन जाएगा, एक स्टेप करने पे वो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा. देन आ गया ट्रिग्नोमेट्री. देन मेंसुरेशन में आपका क्यूब्स, वॉल्यूम एटसेट्रा. मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आएंगे, हम एक कर सकते हैं इसका. देन कम्स P&C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. 2 क्वेश्चन होंगे, एक कर सकते हैं आराम से. देन प्रोबेबिलिटी अगेन 2 क्वेश्चन आएंगे, एक कर सकते हैं. देन एनी बिग टॉपिक आई हैव मिस्ड, अदर्स, साइक्लिसिटी, सीरीज एटसेट्रा, APGP एटसेट्रा, एक क्वेश्चन होगा, एक कर सकते हैं. अगर हम चलो यहां तक भी पकड़ते हैं, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो गए अगर हमारे, तो 30 मार्क्स हैं हमारे पास. 30 मार्क्स, 10 क्वेश्चन जैसा क्वांट आ रहा है पिछले कुछ सालों से, अगर आप कर गए विद हाई एक्यूरेसी, आई थिंक यू कैन गेट 97 to 98 परसेंटाइल. हमको क्या लेना बाकी क्वेश्चन से फिलहाल, प्लॉटिंग और अलजेब्रिक इक्वेशंस एटसेट्रा, डिफिकल्ट साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस, अगर ट्रिक या अच्छा इसके अलावा प्लस एक आधा सीरीज एटसेट्रा, साइक्लिसिटी और रिमाइंडर थ्योरम, HCF LCF एटसेट्रा. एक आधा और फंस गया, 11 हो गए, 33 आ गए, तो यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 98 to 99 परसेंटाइल.
काम हो गया। अब प्रश्न ये है कि ये जो है कहानी कि ये 11 हमारे हाथ में आए, पहली चीज है हमें आइडेंटिफाई करना आ चुके वो दो दो कौन से हैं जो हमने नहीं करने। दैट इज दोज आर काइंड ऑफ ट्रैप क्वेश्चंस फॉर नॉन इंजीनियर्स एंड नॉट टीचर्स। अपने का गोल क्या है? 98 से 99। 100% आपका गोल नहीं है। 100% संजय सर का गोल था, उन्होंने 27 करेक्ट किए 29 में से। ही कैन डू इट एज ए टीचर। योर गोल इज 11 करेक्ट विद हाई एक्यूरेसी, यू आर गेटिंग 98 to 99। अब इसमें जो टीटा क्वेश्चंस हैं, अब बच्चों की कईयों की मुझे एक दो की फीडबैक मिली, सर टीटा थे तो मैंने पहले टीटा करने शुरू कर दिए। टीटा हिस्टोरिकली जो मैंने देखा है और बच्चों से जो मुझे फीडबैक मिली है, क्वांट में टीटा को निकाल के एग्जैक्ट सेम वैल्यू निकाल के डालनी और वो करेक्ट आनी तभी करना है अगर वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉमा स्ट्रेट एंड कॉमा फेमिलियर क्वेश्चन है। पता है हमें कि ये फॉर्मूला लग जाना है, इससे 100% यही आंसर आएगा, तभी मैं करूंगा। अदरवाइज क्योंकि टीटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई बच्चे इसको प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं। दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच, प्लीज डोंट डू इट। तभी करना टीटे वाला अगर वेरी स्ट्रॉन्ग है वो क्वेश्चन, स्ट्रेट है, पता है कि स्ट्रेट एक आंसर आ जाएगा और यू आर वेरी फेमिलियर विद द फॉर्मूला विच इज गोइंग टू बी यूज। सो दिस इज हाउ यू कैन टारगेट 98 to 99। अब जैसे मैंने वर्बल में बोला क्या करना है और डीआईएलआर में बोला क्या करना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये क्वेश्चंस कौन से हमने करने हैं और पता लग जाए कौन से नहीं करने। उसके लिए आई विल टेल यू नाउ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच इज अगेन हैज हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट्स इन द पास्ट। इन सारे टॉपिक्स के कितने हैं? 10 टॉपिक लगा लो मोटा मोटा। 10 टॉपिक्स के 10 रजिस्टर लगाने हैं आपने, इंडिविजुअल 10 रजिस्टर्स। रजिस्टर के शुरू में 15 to 20 पेजेस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज कॉमा शॉर्टकट्स पब्लिक स्मार्ट कट्स। ये उस हर टॉपिक के 20 के, क्या मैं तो 15 से 20 लिखा है, अब 15 20 का 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 10 रजिस्टर्स मैथ के लिए अलग अलग लगाने हैं, 15 इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। और उसमें 10 से 15 से 20 पेजेस कंसेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट्स एक्सेट्रा शुरू में लिखे जाएंगे, पहली चीज। उसके बाद हमने आज जगदीप सर जाके प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन, ये परसों ही हमारी बात हो गई थी जब उस बच्चे की मैंने काउंसलिंग की थी, उनको मैंने बोला था बच्ची को कि हम प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस आपको शेयर करेंगे। मेरे पास अराउंड 28 to 29 ईयर्स के, चलो 20+ ईयर्स के प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस हैं, बुक्स में है, हमने मंगाई हुई है बुक्स। उसका आज पीडीएफ बनने के लिए दे दिया, जैसे पीडीएफ आएगा सर आपको दोनों ग्रुप्स में पीडीएफ शेयर कर देंगे। प्रीवियस ईयर्स कैट क्वेश्चंस सेकंड उस रजिस्टर में लिखने हैं, से 30-40 फॉर दैट टॉपिक, प्लस सॉल्व बाय योर हैंड, ठीक है, नंबर 2 चीज। उसके बाद नंबर 3 सिम कैट्स के क्वेश्चंस फॉर दैट टॉपिक। मैं ये कहूंगा इजी, सिम कैट के इजी कॉमा मॉडरेट डिफिकल्टी क्वेश्चंस फॉर दैट टॉपिक, ये कर दिया हमने यहाँ पे। और नंबर 4 जो एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशंस में संजय सर आपको इजी कैट क्वेश्चंस या उनके अपने बनाए हुए क्वेश्चंस आपको कराते हैं, उनको लिख लो बस। 10 रजिस्टर बने हैं। अब जैसे एक है अलजबरा के 15 से 20 पेज, उसके बेसिक्स एक्सेट्रा, इक्वेशंस के फॉर्मूला, इक्वेशंस के रूल्स एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, ज्योमेट्री में आ गए सर्कल, ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स के मेन रूल्स, सिमिलैरिटी के रूल्स, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के रूल्स, देन लॉग्स एंड डाइसेस में जैसे 9 लॉग्स के बेसिक रूल्स हैं वो लिख लिए कि ये दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके ऊपर लॉग दिस a प्लस बी। इसी तरह ट्रिग्नो के वैल्यूज साइन 30 60 90, इसी तरह कॉस टेन और कॉस इसका टेन और उल्टे उनके, तो उनकी वैल्यूज, और वो वैल्यूज इन परसेंटेजेस आल्सो, नंबर्स में भी 1 अंडर रूट क्या रहता है, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। अब कहानी ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ आपको
10 रजिस्टर लगा, कोई कह रहा है मैं आईपैड में लिख रहा हूँ, कोई कह रहा है कहीं लिख, अरे भैया हम छोटे होते थे जब हाथ से लिखते हैं कोई चीज तो दिमाग में पक्की होती है, पहली चीज। दूसरा, जब आप पेपर फॉर्म में अपने हाथ से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, आप बाद में जब उसको, ये रिवीजन इज क्रिटिकल, रिवाइज these registers after every 15 days। 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, एक रजिस्टर को देखा, फॉर्मूले देखे, क्वेश्चन देखे, मैंने ऐसे सॉल्व किए थे और ये वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा एट द मोस्ट, 2 आवर पर 15 डेज। अगर ये हम करेंगे ना साथ साथ, तो क्या होगा कि आगे दौड़ पिछला चौड़ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हम अगले अगले करते रहते हैं, कहीं बच्चों की ये फीडबैक है, सर अगले वाला हम कर लेते हैं, जब उसका प्री क्लास देख के आते हैं, क्लास लगाते हैं, घर जाके कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो अच्छे से हो जाता है। पिछले वाला जो 1 महीना पहले या 2 महीने पहले किया होता है वो भूल जाता है। और हमने कैट देना है, कैट 25 वालों ने 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, और जो 26 वाले उन्होंने 1.5 साल बाद। तो ये दिमाग से ना निकले, इसलिए ये 5-10 रजिस्टर अपने हाथ से बनाने हैं आपने। 10 to 5, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहा हूँ। 15 to 20 पेजेस में उसके फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, शॉर्टकट, स्मार्टकट्स रहेंगे। फिर प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चन जो आज आपको पीडीएफ से आ जाएंगे, उनको अपने हाथ से सॉल्व करना है, भले ही उसमें टीचर ने किया हुआ है, उसमें किया हुआ है, क्लास में किया हुआ है, तो भी क्लास में भी कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उनको भी लिख लो। उसमें मोटा रजिस्टर इतना का ले लो, इतने के रजिस्टर 10 ले लिए और ये कर लिया, तो आपका क्वांट में 97 से 98 नहीं रोक सकता कोई भी आने से। और नहीं किया तो लड़खड़ाएंगे 70-80, कुछ भी आ सकता है। फिर प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन, फिर सिम कैट के क्वेश्चन फॉर इजी मॉडरेट डिफिकल्टी ऑफ दैट टॉपिक, एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन के क्वेश्चन इजी वाले करके ये लिखते जाएं और वो देखते जाएं। प्लस जो इधर कहा था मैंने डीआईएलआर में, आपको सिम कैट्स देने देने, सिम कैट्स टेक होम, प्रॉक्टर्ड, सेक्शनल, सारे 70 के करीब हैं, इनमें 1400-1500 क्वेश्चन ये होंगे अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा प्रैक्टिस मॉड्यूल प्लस मॉड्यूल टेस्ट प्लस और क्वेश्चन जो सर कराने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्लस क्लास एक्सेस, क्लास शीट्स। इसमें मैं ये कहूंगा प्रीवियस कैट क्वेश्चन, सिम कैट के इजी क्वेश्चन प्लस क्लास शीट के क्वेश्चन, क्लास शीट क्वेश्चंस करो, अपने हाथ से लिख के रखो। सिर्फ क्लास शीट करी, सॉल्व हुई, प्री क्लास वीडियो देख के आए, क्लास लगाई, उसके बाद घर जाके प्रैक्टिस मॉड्यूल से थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, अच्छा है, गुड है। ये प्रोटोकॉल तो है ही है, ये तो मस्ट है, ये 110% हर एक ने करना ही करना है फॉलो। इसके बाद हमने उसको रजिस्टर में लिखा, ये क्वेश्चन प्रीवियस कैट के क्वेश्चन किए उस टॉपिक के, जो हो गया वो आपको बुक में मिलेगा अलग से, बुक से उठा लेने हैं, जो भी आज आपको पीडीएफ शाम को जगदीप सर या कल तक भेज देंगे। वो क्वेश्चन किए, लिख लिए, फिर सिमकैट के क्वेश्चन किए, लिख लिए, फिर क्लास शीट के क्वेश्चन उसमें लिखे, कर लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन के क्वेश्चन उसमें कर लिए, रजिस्टर में रजिस्टर बन गया इतना मोटा। 10 एक टॉपिक जो हुआ, हर 15 दिन बाद, भले चल आगे कुछ भी रहा है, 2 घंटे लगा के हमने उसको रिवाइज करना। ये किया, कोई नहीं आपको रोक सकता 97 98 लेने से। सो दीज आर माई वेरी 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 वेरी, आई कांट एम्फेसाइज मोर हाउ इंपॉर्टेंट दीज इंपॉर्टेंट टिप्स आर। सब लोग करें। अभी भी जो बच्ची ने मेरे से सेशन लिया था थोड़े दिन पहले, आई चेक्ड विद हर इन द इवनिंग यस्टरडे, शी अगेन सेड कि यस सर काफी फायदा होना शुरू हो गया। और आप प्लीज, ये पेजेस हैं, मैं इसकी फोटो भी जगदीप सर आपको भेज देंगे। गेट अप अर्ली, 15 मिनट मेडिटेशन, फास्ट वॉकिंग या रनिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन सुबह, मेडिटेशन शाम को। आपका स्टेमिना इज क्रिटिकल इन दिस टेस्ट एंड थ्रू आउट योर लाइफ इट विल हेल्प। ये जो आप अपना डिसिप्लिन शेड्यूल अगर कर गए, अगर रात को 2 बजे सोना है, सुबह सनराइज के बाद उठना है, कहानी फिर बहुत बढ़िया अटेम्प्ट नहीं होने, मुश्किल आ जाएगी, फिर बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। अभी अपने आप को डिसिप्लिन करके हम चलें। वी शुड ऑल अचीव सक्सेस, आवर गोल इज वी वांट यू टू अचीव सक्सेस। फिर भी इसके बाद भी अगर किसी को इंडिविजुअली टाइम लेना हो, he and she can take time from me by WhatsApp, I already shared. So best of luck, all the best. फॉलो करें इसको, मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू 50 मिनट्स मेडिटेशन, गो फॉर फास्ट रनिंग 20-30 मिनट्स, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्रेन की स्टेमिना बढ़ता है। टेस्ट में, इस टेस्ट में पढ़ने में भी, तैयारी में भी स्टेमिना हेल्प करने वाला है हमें, ब्रेन का स्टेमिना, बॉडी का स्टेमिना। टेस्ट देते टाइम भी स्टेमिना बढ़ेगा। और जो मैंने वो ये वाली यूज की है, आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं, फिंगर्स ऐसे यूज करो आरसीज के लिए स्क्रीन पे,
फिर उनको P1 P2 का जिस्ट बनाओ, कोई कार, और ये स्ट्रेटजीज लगाओ। ऑड सेंटेंस आउट में स्ट्रॉन्ग एरिया है तो पहले करो, नहीं तो, और पहले करो, 50% तो है ही है चांस, 2 क्वेश्चन है, एक भी ठीक हो गया नंबर दे जाएगा, नहीं है एंड में मार दो तुक्का, 2 को पकड़ के शॉर्ट लिस्ट करके। ऑड सेंटेंस आउट में 2 तो लग ही रहे हैं पक्के, 2 में डाउट है, जो ज्यादा डाउट वाला लग रहा है उसको टिक कर दो, फिर भी 50% प्रोबेबिलिटी है टू गेट यू ए करेक्ट आंसर, और 50% रॉन्ग होने वाला, नहीं करने पे भी तो रॉन्ग है ही है, और रॉन्ग का कोई इसमें नेगेटिव है नहीं, लास्ट के 2-3 मिनट ये यूज करो। तो इस तरह से दिस स्ट्रेटजी यू फॉलो। I wish everyone should get 95 plus in this year. All the best. God bless.